Hello students, how are you all? So this is the third part of the video, chapter 1, Geography, class 8th. Fine students, earlier we have discussed about what are resources, what is utility, what is value, what are patents, what is time and technology, and we have discussed various types of resources, natural resources. So in natural resources we discussed about actual and potential resources. Actual resources are those whose quantity is known. These resources are being used in the present. The rich deposits of coal in Ruhr region in Germany, and I gave you the rest of the examples also. So now potential resources. Potential resources are those whose entire quantity may not be known, and these are not being used in the present. Potential resources वो resources होते हैं जिनकी entire quantity means जिनकी entire जो value होती है, जो जिनकी worth होती है वो हमें नहीं पता होती और वो आज के time में use भी नहीं हो रहे होते. These resources could be used in the future. ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हमें कहाँ पे यूज़ करना होता है, फ्यूचर में यूज़ करना होता है. द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू ईजिली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज. अब जो लेवल होता है किस चीज़ का, टेक्नोलॉजी का, आज के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड नहीं हो सकता. तो मतलब हम इन रिसोर्सेज को यूज़ अभी नहीं कर सकते प्रेजेंट में. The uranium found in Ladakh is an example of potential resource that could be used in the future. तो ऐसे resources जैसे कि यूरेनियम है जो लद्दाख में मिलता है, तो उसका हम कब यूज़ करेंगे, फ्यूचर में यूज़ करेंगे. अभी हम उस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं. हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago. 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले जो हाई स्पीड विंड्स थी वो एक पोटेंशियल रिसोर्स थी उस समय पर. बट टुडे they are an actual resource, and wind farms generate energy using windmills like in Netherlands. You will find some in Nagarkol and Tamil Nadu and on the Gujarat coast. So ये कुछ ऐसे resources हैं जिनका हमें कब यूज़ करना होता है, फ्यूचर में. Now, based on their origin, resources can be abiotic और biotic. Next topic हमारा है biotic और abiotic. कौन से resources होते हैं, origin मतलब कहाँ से actually ये आए हैं. Abiotic resources are non-living while biotic resources are living. ध्यान दीजिए इस topic पे. Abiotic resources वो होते हैं जो non-living होते हैं और biotic वो होते हैं जो living होते हैं. Soil, rocks and minerals are abiotic. जैसे कि मिट्टी, पत्थर और जो मिनरल्स होते हैं वो कौन से रिसोर्सेज कहलाते हैं, अबायोटिक, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग. बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज. लेकिन जो पौधे होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो कौन से रिसोर्स कहलाते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज, बिकॉज दे आर लिविंग. Now, natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. Natural resources को हमने दो तरह से categorized किया है. First, renewable resource and second one is non-renewable resource. Renewable resources are those resources which get renewed or replenished quickly. Renewable resources वो resources होते हैं जिन्हें हम बार बार renew कर सकते हैं, नया कर सकते हैं फिर से, और replenished quickly, जो जल्दी से ख़त्म भी हो जाते हैं. Some of these are unlimited and are not affected by human activities. ऐसे कुछ resources हैं जो unlimited quantity में हैं, मतलब कि जो कभी ख़त्म नहीं होते और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अफेक्ट भी नहीं होते. सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. जैसे कि सोलर और हवा से जो एनर्जी हमें मिलती है, धूप से जो एनर्जी हमें मिलती है, वो नॉन अफेक्टेड होती है, यानी कि ह्यूमन उसका कितना भी यूज़ कर ले, इट इज़ नॉट अफेक्टेड. येट careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. लेकिन फिर भी अगर हम carelessly इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो जो renewable resources है जैसे water, मिट्टी, फॉरेस्ट, एंड दैट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, वो उसके स्टॉक को अफेक्ट कर सकती है. मीन्स अगर हम बिना देखे, बिना सोचे समझे पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा.
वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो कि अनलिमिटेड है, बट शॉर्टेज इन ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल रिसोर्स सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। बट क्योंकि पानी सूख जाता है और जो उसकी शॉर्टेज है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे पार्ट्स में वर्ल्ड की। फाइन स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये हमने पढ़ा रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। नाउ वी विल सी द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Now non-renewable resources are those which have a limited stock. Non-renewable resources वो होते हैं जिनका एक limited stock होता है, means जिनकी एक मात्रा, एक सीमित मात्रा होती है कि उससे ज़्यादा आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. एक बार अगर वो स्टॉक जो है वो ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्ट का मीनिंग होता है ख़त्म हो जाना, तो उनका स्टॉक अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो हज़ारों साल लग जाते हैं उन्हें वापस बनाने में। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, ये पीरियड इतना ज़्यादा है, मीन्स ह्यूमन लाइफ का जो स्पैन है, जो एक जो एक ह्यूमन लाइफ होती है जो वो 100 ईयर्स तक की होती है या मैक्सिमम 110 ईयर्स होती है। सो जब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे मीन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हमें लग जाते हैं उस चीज़ को बनाने में दोबारा, ठीक है। सो सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। कोयला जो हमारा पेट्रोल होता है और नेचुरल गैसेस होती हैं, जो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्टस एंड लोकलाइज्ड। दो रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में बांटे गए हैं, मीन्स कितने रिसोर्सेज का कहाँ कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना बंटवारा हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को दो रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया है, यूबिक्टस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्टस। अब जैसे कि हवा, जिसे हम सांस लेते हैं, अब हवा तो हर जगह पाई जाती है, तो यही बताया गया है इसमें कि जो रिसोर्सेज हर जगह पाए जाते हैं उन्हें यूबिक्टस बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एयर। बट दोज विच आर फाउंड ओनली एट सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन ऑर। लेकिन जो रिसोर्सेज किसी किसी जगह पे पाए जाते हैं, सिर्फ कुछ ही स्थानों पर पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर एंड आयरन, जैसे मिनरल्स के जो ओर होते हैं, मिनरल्स की जो खान होती हैं, वो बहुत ही कम जगहों पर पाई जाती हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पे कि कैसा वहाँ का वातावरण है और कैसी वहाँ की वायु है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो अनइक्वल होता है। अनइक्वल मतलब उतार चढ़ाव होता है, उसमें कम ज़्यादा होता है, बिकॉज हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है और जो हमारे अर्थ के फिजिकल फैक्टर्स हैं, वो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट जगहों पर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मीन्स कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है, कहीं पे बारिश कम होती है, कहीं पे जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे सनलाइट कम है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कई बार ज़्यादा कम होता रहता है कुछ जगहों पर, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ। तो क्या होता है इसमें कि इसी एक्चुअली ये कॉज है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो नेचुरल रिसोर्सेज का है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो स्टूडेंट्स। Like, subscribe and share if you like the video, and stay tuned for the next part. Thank you.